السلام علیکم ناظرین، یہ واقعات کلنجر کے علاقے کے ہیں۔ کلنجر جنوبی کشمیر کا علاقہ تھا جس میں کوٹلی، راجوڑی اور پونچھ تک کا علاقہ شامل تھا۔ آگے چل کر کسی دور میں کلنجر کوٹلی بن گیا اور یہ آج بھی کوٹلی کہلاتا ہے۔ راجوڑی کے قریب لو کوٹ یا لوہا کوٹ کا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا۔ اسے لوہا اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ایک پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ بلندی کے علاوہ اس کی مضبوطی بھی مشہور تھی اور اسے ناقابل تذکیر کہا جاتا تھا۔ کلنجر کا مہاراجہ نندا رائے تھا۔ پنجاب سے جب بھی کسی مہاراجے نے شکست کھائی وہ بھاگ کر کلنجر جا پہنچا، کیونکہ وہ بڑا مضبوط گوشہ یافیت تھا۔ جے پال سلطان محمود سے شکست کھا کر وہیں پناہ گزین ہوا تھا۔ اس کے بیٹے انت پال نے سلطان سے شکست کھائی تو وہیں بھاگ گیا تھا۔ اب بھیم پال نڈر کو غزنی کی فوج نے ٹلا جوگیاں کے علاقے میں شکست دی تو وہ بھی کشمیر کی وادیوں میں جا چھپا۔ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان محمود غزنوی بھیم پال نڈر کے تعاقب میں کشمیر تک جا پہنچا۔ راجہ نندا رائے کے ایک جرنیل تنگا نے سلطان کے ہراول دستے کو گھیر کر بالکل ہی ختم کر دیا، لیکن اس کی اسے قیمت ادا کرنی پڑی کہ اسے سلطان محمود کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تنگا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگی قیدی ہو گیا۔ سلطان محمود اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے تنگا اور اس کے تمام کمانداروں کو ہلاک کر کے لاشیں دریائے جہلم میں پھینک دیں اور اس کے سپاہیوں کو غلاموں کی حیثیت سے غزنی بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم جاری کر دیا کہ لوگ اسلام قبول کر لیں ورنہ بستیاں اجاڑ دی جائیں گی۔ مہاراجہ نندا رائے کو جرأت نہ ہوئی کہ قلعے سے باہر آ کر سلطان محمود کا مقابلہ کرتا۔ اس کی فوجی طاقت خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ سلطان نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ راجہ بھیم پال کو اس کے حوالے کر دے یا بھیم پال کی طرح باج گزار ہو جائے۔ راجہ نندا رائے نے دوسری شرط قبول کر لی۔ بھیم پال نڈر پہلے ہی باج گزار تھا۔ معاہدے کے مطابق کلنجر کے علاقے میں بھی سلطان محمود نے 2-3 چوکیاں قائم کر دیں، جن میں ایک کماندار کی کمان میں تھوڑی سی نفری رکھ دی اور خود غزنی چلا گیا۔ اس نے وہاں کی تمام آبادی کو مسلمان ہو جانے کا حکم دے دیا تھا اور اس نے یہ انتظام بھی کر دیا تھا کہ پشاور، لاہور، ملتان اور بھیرا سے ایسے بہت سے مسلمانوں کو جو مذہبی سبق دے سکتے تھے کشمیر بھجوا دیا تھا۔ کسی پر کوئی مذہب ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ سلطان محمود نے کہا تھا، میں نے بے شک حکم دیا ہے کہ یہاں کا ہر فرد و بشر مسلمان ہو جائے، لیکن میں کفار کا یہ الزام صحیح ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا تھا۔ یہاں کے لوگ گنوار اور اجڑ ہیں۔ یہ لوگ حاکم کے حکم کو مذہب سمجھتے ہیں۔ اس علاقے میں مسجدیں کھڑی کرو تاکہ یہ لوگ باجماعت نماز پڑھیں تو انہیں پتہ چلے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی امیر ہے یا غریب، راجہ ہے یا رعایا، ہر کسی کا ماتھا ایک ہی طرح ایک ہی زمین پر سجدے میں رگڑا جاتا ہے۔ ایک مشہور تاریخ دان سر ارل سٹین کی تحریر کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا، چونکہ لوگوں کو اسلام کی عظمت اور برکت عملاً نہیں دکھائی جاتی اور سلطان کہتا کچھ اور کرتا وہ ہے جو اس کی اپنی ذات کی عظمت کے لیے موزوں ہوتا ہے، اس لیے مسلمان اپنے ہی مذہب سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی سلطنت میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کو ذہن نشین کرو کہ خدا کیا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کے احکام کیا ہیں۔ مہاراجہ نندا رائے کی شکست خوردہ حکومت 2 قلعوں کے اندر قید ہو گئی تھی۔ بہر سلطان محمود اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کرنے کے حکام دے گیا تھا۔ پشاور، لاہور، ملتان اور بھیرا سے بہت سے ایسے مسلمان جو تبلیغ و امامت کرا سکتے تھے بلا کر علاقے میں پھیلا دیے گئے تھے۔ بعض جگہوں پر مسجدیں تعمیر ہونی شروع ہو گئی تھیں اور بیشتر گاؤں میں لکڑی کا ایک ایک جھونپڑا کھڑا کر کے اسے مسجد بنا لیا گیا تھا۔ اس خطے کے رہنے والوں کا مذہب وہی تھا جو ان کے مہاراجہ کا تھا۔ ان کا مذہب پیٹ سے تعلق رکھتا تھا یا اپنی جان سے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو فاتح دیکھا تو اس کا مذہب اختیار کر لیا۔ سلطان محمود اسلام کو ان کی روحوں میں اتار دینے کا اہتمام کر گیا تھا، مگر ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے لیے یہ بہت بڑی شکست تھی۔ بھیم پال نڈر کلنجر یا لوہ کوٹ کے قلعے میں پناہ لینے کی بجائے کشمیر کی کسی دور دراز وادی میں چھپا رہا۔ جب اسے بتایا گیا کہ سلطان محمود واپس چلا گیا ہے تو وہ کسی ویران راستے سے لاہور پہنچ گیا۔ بہت دنوں بعد لاہور میں دوسری ریاستوں کے راجے مہاراجے جمع ہو گئے۔ اس اجتماع میں بڑے بڑے مندروں کے پنڈت بھی شریک تھے اور ایک بار پھر تجویزیں اور منصوبے پیش کر رہے تھے کہ اسلام کے سیلاب کو کس طرح روکا جائے۔ اب سب میں اتفاق اور اتحاد صرف اس لیے پیدا نہیں ہو رہا کہ آپ کو اپنے اپنے راج کا فکر ہے۔ بڑے پنڈت نے کہا، آپ سب مسلمانوں سے ڈر گئے ہیں۔ تعداد میں مسلمانوں کی فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور وہ اتنی دور سے آ کر لڑتی ہے۔ یہاں کا بچہ بچہ اس فوج کا دشمن ہے، یہاں کی زمین اس فوج کی دشمن ہے۔
مگر فتح ہر بار مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا محمود دیو ہے، جن ہے یا بھوت ہے؟ وہ آپ کی طرح کا انسان ہے، لیکن وہ آپ سب پر اس لیے غالب آ گیا ہے کہ اس کا مذہب جو کچھ بھی ہے وہ اپنے مذہب کا شیدائی ہے، اسی کو مسلمان ایمان کہتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے۔ سب خاموش تھے۔ پنڈت نے سب پر نگاہ دوڑائی۔ ہندوستان ہندوؤں کا دیش ہے، ہندوستان دیویوں اور دیوتاؤں کا دیش ہے۔ ہمارے مذہب کی جو توہین ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دھرتی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ کسی ایک بھی مسلمان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے آنے والی نسلوں کو اس قہر سے بچاؤ۔ ہمارے لیے یہ باتیں نئی نہیں، مہاراجا بھیم پال نڈر نے کہا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کلنجر کے علاقے میں جس طرح اسلام کا بیج بویا جا رہا ہے اس کا علاج کیا جائے۔ مجھے تمام مہاراجوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے۔ آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے تو یہ بھی تسلیم کر لیں کہ آپ آئندہ بھی شکست کھا سکتے ہیں۔ پنڈت نے کہا، تیاری میں وقت لگے گا۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ کلنجر میں جس طرح تمام تر آبادی کو مسلمان بنا لیا گیا ہے اور اسلام کو ان کے دلوں میں اتارنے کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس کا توڑ سوچا جائے۔ آپ وہاں اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے۔ کلنجر کے راجا نندا رائے نے کہا، سلطان محمود وہاں اپنی چوکیاں قائم کر کے کچھ فوج وہاں چھوڑ گیا ہے۔ یہ فوج گشت پر رہتی ہے، ہر کام تلوار سے نہیں کیا جا سکتا۔ بھیم پال نڈر کے وزیر نے کہا، شوب دے دکھاؤ۔ اگر ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو حکم چلائے بغیر انہیں ہم اسلام سے متنفر کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا کر سکتے ہیں۔ کہاں ہیں اس فن کے استاد؟ انہیں استعمال کرو۔ کلنجر کے جنگل، پہاڑ اور وادیاں اس کام کے لیے موزوں ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو ڈراؤ اور فریب دو، اور خوبصورت چکمے بھی۔ محمود اپنی فوج کی جو تھوڑی سی نفری چھوڑ گیا ہے اس پر خوف بھی طاری کرو اور انہیں بھی حسین جال میں پھانس کر بیکار کر دو۔ اگر ہم نے وہاں اپنی در پردہ کروائیاں نہ کی تو وہ علاقہ مسلمانوں کا گڑھ بن جائے گا اور ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ انسان کی کمزوریوں کو استعمال کرو۔ بڑے پنڈت نے کہا، پیار اور خوف ہر کسی کی کمزوری ہے۔ پیار اور محبت کا پیغام خواہ جھوٹا ہی ہو، انسان اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ ایسی تجویز تھی جو سب کو پسند آ گئی اور سب نے اس پر اتفاق کیا۔ 1014 عیسوی کی آخری سہ مئی میں آج کے جنوبی کشمیر میں ایسے واقعات رونما ہونے لگے تھے کہ وہاں توہمات اور خوف کی حکمرانی تھی۔ جن گاؤں میں کوئی مافوق الفطرت واقعہ نہیں ہوا تھا وہاں دوسری جگہوں سے افواہیں پہنچ جاتی تھیں۔ ان کے مطابق پہاڑ آگ اگلتے تھے، آسمان صاف ہوتا تھا مگر بجلی چمکتی تھی، بڑی خوبصورت چڑیلیں مسافروں کے راستے روکتی تھیں۔ لوگ سن کر ہی ڈر جاتے تھے اور یہ ڈر اس وقت دہشت بن جاتا تھا جب کوئی اجنبی خوف سے کانپتے ہوئے انہیں سناتا تھا کہ غزنی کے مسلمان لوگوں کے بچوں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ سلطان محمود کی فوج کی ایک چوکی کا کماندار زبیر جلالی زمین میں دھس گیا تھا۔ یہ حادثہ بڑا سنگین تھا، اس کی اطلاع سروگ تک پہنچانا ضروری تھا۔ تمام چوکیاں جو کلنجر میں قائم کی گئی تھیں ان کا کمانڈر سروگ تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر ٹالا جوگیاں کے مقام پر تھا۔ اسے امام اور سپاہی نے آ کر اطلاع دی تو وہ کلنجر کو روانہ ہو گیا۔ اس کے قافلے میں اس کے چند ایک محافظ تھے۔ قافلہ گھوڑوں پر سوار تھا اور ان کا سامان خچروں اور ٹٹوؤں پر لدا ہوا تھا۔ ان سے کچھ دور دور 2 گھڑ سوار جا رہے تھے جو لباس اور حلیہ سے غریب اور بے ضرر مسافر لگتے تھے۔ وہ سروگ کے قافلے کو دیکھ کر آگے نکل گئے۔ امام اور سپاہی جب کشمیر سے آ رہے تھے تو وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ یہی دونوں گھڑ سوار اسی طرح ان سے کچھ دور دور چلے آ رہے تھے۔ جب امام اور سپاہی بالنات میں داخل ہوئے تو گھڑ سوار کہیں چلے گئے تھے۔ اب سروگ امام اور سپاہی کے ساتھ روانہ ہوا تو دونوں سوار ان سے دور دور چلے جا رہے تھے۔ سروگ کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں تھی، امام اور سپاہی راستے سے واقف تھے۔ وہ مسافت کی عام رفتار سے تیز چلے جا رہے تھے۔ ان کے نیچے سے اونچی نیچی زمین، پتھریلے کھڈ نالے، گھاٹیاں اور ٹیلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ انہیں کشمیر کے پہاڑوں کی برپوش سفید سفید چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ امام سروگ کو بتا رہا تھا کہ ان چوٹیوں کے دامن میں جو خطہ ہے وہ کس قدر حسین ہے اور وہاں کے لوگوں کا حسن اس خطے سے زیادہ دلکش ہے۔ سفر کی پہلی رات چٹانوں اور ٹیلوں کے علاقے میں آئی۔ قافلہ رات بھر کے لیے رک گیا۔ موسم سرد تھا۔ قافلہ جب منزل کو روانہ ہونے لگا تو ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑا۔ یہ ایک محافظ کا گھوڑا تھا، ابھی سوار اس کی پیٹھ پر نہیں بیٹھا تھا۔ محافظ نے چلا کر کہا، سانپ ناگ! اس کے ساتھ ہی ایک اور گھوڑا ڈر کر دوڑ پڑا۔ گھوڑے اور ٹٹو چلنے کو تیار تھے، اس لیے کھلے ہوئے تھے۔
वो घोड़ों की खौफजदा आवाज़ें सुनकर तमाम घोड़े खच्चर भाग उठे। किसी पर कोई सवार नहीं था। सब ने देखा कि एक 1.5 गज लंबा सांप रेंग रहा था। वो इलाका सरसाब साफ, घास ऊंची भी थी और छोटी भी, खुदरू पौधे थे और दरख्त भी। वहाँ चट्टाने और टीले थे। खच्चर और टट्टू सामान समेत भाग गए थे। किसी को सांप मारने का होश ना रहा। असल मसला घोड़ों को पकड़ने का था। इलाका ऐसा था कि पता नहीं चलता था कि जानवर किधर निकल गए हैं। सब उनके पीछे दौड़ पड़े। सांप से डरे हुए जानवर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो सब चट्टानों और टीलों में गायब हो गए तो एक चट्टान की ओर से 2 आदमी सामने आए। सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। उनमें से एक आदमी ने सांप को गर्दन से पकड़ा और परे ले जाकर अपने घोड़े की जैन में साथ बंधे हुए थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर दिया। वहां एक और घोड़ा खड़ा था। वो आदमी एक घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़कर इधर आ गया। उसका साथी घोड़े पर सवार हुआ और दोनों वहां से गायब हो गए। आज का दिन तो ये अपने घोड़े और टट्टू पकड़ते रहेंगे। एक ने कहा, आगे चलो, ये वापस नहीं जाएंगे, हो सकता है वापस चले जाएं। दूसरे ने कहा, इन पर नजर रखो। दिन का पिछला पहर था जब सरोग का काफिला इस हाल में कलंजर की तरफ चला जा रहा था कि निस्फ काफिला पैदल था और सामान वाले सिर्फ 2 टट्टू साथ थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन 2-4 घोड़ों और 2 टट्टुओं को पकड़ा था। सारोग अज़म का पक्का था, मैदान जंग का धनी था, किसी दुश्वारी और किसी रुकावट को खातर में नहीं लाता था। उसने काफिले से कहा कि जो पैदल चलते थक जाए वो घोड़े पर सवार हो जाए, मैं खुद पैदल चलूंगा। हिंदुस्तान के नाग हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। अब रास्ता पहाड़ियों के अंदर से गुजरता था। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ दूर को नीचे गई हुई ढलान थी। थोड़े थोड़े फासले पर रास्ता मुड़ता था, कभी 2 पहाड़ों के दरमियान चला जाता था। वो जो आगे बढ़ते जा रहे थे, सर्दी बढ़ती जा रही थी, हवाएं यख होती जा रही थीं। अगर उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था तो भी भूख और प्यास से मरने का कोई खतरा नहीं था। वहाँ पानी की बहुतायत थी और फलदार दरख्त भी थे। बच्चे कुछ घोड़ों के लिए घास ही घास थी। काफिले ने रात चट्टानों में कुदरती गुफों में गुजारी। घोड़े बहर बंधे रहे। रवानगी के लिए घोड़ों पर जैनें डाली गईं और काफिला रवाना हो गया। सारोग खुद पैदल चलने लगा। उसने इमाम को एक घोड़े पर सवार कर दिया। चूंकि वो खुद पैदल चल रहा था इसलिए उसके मुहाफिज भी पैदल चलने लगे और अचानक इमाम का घोड़ा रुककर थर थर कांपने लगा। घोड़ों की कैफियत को वही समझ सकते थे जिनकी जिंदगी घोड़ों के साथ गुजरी हो। सारोग ने घबरा कर कहा, घोड़े से कूद आओ, और इमाम घोड़े से कूद आया। घोड़ा खौफ से हिनहिनाकर भाग उठा। इसके साथ ही दूसरे घोड़े भी बेकाबू होकर हिनहिनाने लगे। सांप सांप, किसी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। अब एक की बजाय 2 सांप थे। दोनों एक ही रंग के और एक ही लंबाई के थे। घोड़े लगामें छुड़ाकर इधर उधर भाग उठे थे, इसलिए सब उन्हें पकड़ने को दौड़े। सांपों को मारने का किसी को होश ना रहा। 2 घोड़े ढलान से फिसल कर लुढ़े गए। नीचे दरियाए जहलम बहा चला जा रहा था। सारोग के मुहाफिज दूर ऊपर खड़े घोड़ों को दरिया में बहता देखते रहे। काफिले के तमाम आदमी जब हरी भरी चट्टानों में घिरी हुई उस जगह से जहां उन्होंने रात गुजारी थी चले गए तो वही 2 आदमी सामने आए जो छुप छुप कर काफिले के साथ साथ चले जा रहे थे। उन्होंने दोनों सांपों को पकड़ लिया और थैले में डालकर थैला एक घोड़े के जैन के साथ बांध दिया। सारोग के आदमियों ने 1-2 घोड़े और टट्टू पकड़ लिया और मंजिल को रवाना हो गए। ऐसा हो नहीं सकता, इमाम ने सारोग से कहा, यह इलाका सांपों का नहीं। अगर यहाँ सांप हैं भी तो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सर्दी उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। मैं उस सिपाही के साथ इसी रास्ते से गुजरा था, रात को इस जगह क़याम किया था, हमें कोई सांप नजर नहीं आया था। फिर सोचो, सारोग ने कहा, आप रास्ता भूल गए हैं, कोई आबादी देखते हैं। इस इलाके में रास्ते से भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं। सारोग का हौसला अभी तक कायम था। वो काफिले को पैदल ले जा रहा था, सबको हौसला दे रहा था, और वो इस वहम में मुब्तला हो गया था कि इमाम उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वो चले गए और शाम से जरा पहले उन्हें एक मोड़ मुड़ते ही 2 घुड़सवार आते नजर आए। सवार उनके करीब आकर रुक गए। वो कूद कर घोड़ों से उतरे और सड़क के किनारे घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर बैठ गए। सारोग उनके करीब जा रुका। उन दोनों ने सर झुका लिए। सारोग ने इमाम से कहा कि आप इनकी ज़बान जानते हैं, इन्हें उठाओ और इनसे रास्ता पूछो। इमाम ने उन्हें उठने को कहा। वो उठे और एक ने हाथ जोड़े हुए भिखारियों के लहजे में कहा, हम आपके गुलाम हैं, आप मुसलमान हैं, हमने आपका मजहब कबूल कर लिया है। इमाम ने उन्हें अपनी मंजिल बताकर पूछा, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? नहीं। एक ने कहा, हम आपको बहुत दूर से देख कर आए हैं, हम हैरान हैं कि आप इस इलाके से जिंदा किस तरह निकल आए हैं।
इसे हम मौत की वादी कहा करते हैं। इस इलाके में तो शेर भी नहीं आता, ये सांपों का इलाका है। आप जिधर जा रहे हैं उधर हर दरख्त के साथ एक सांप लिपटा हुआ नजर आएगा, आप ये रास्ता छोड़ दें। और वो रास्ता बताने लगा, फिर बोला, मगर आप नहीं समझ सकेंगे, 3-4 मोड़ मुड़ कर आप भूल जाएंगे कि किधर जाना है। हम दोनों आपके साथ चले चलेंगे। इमाम ने सरोग को बताया तो सरोग ने कहा कि इन्हें साथ ले चलो, हम इन्हें उजरत देंगे। नाजरीन, दोनों सवार इस पैदल काफिले के गाइड बन गए। रास्ते में सरोग ने इमाम की मार्फत उनसे पूछा कि वो इन अजीब व गरीब वाक़यात से वाकिफ़ हैं जो कलंजर के इलाके में रूनुमा हो रहे हैं। हम उधर से ही भाग कर आए हैं। एक आदमी ने जवाब दिया, हम अपने बाल बच्चों को इधर ले आए हैं। क्या तुमने पहाड़ों से आग निकलती देखी है? हम बहुत दूर रहते थे। उसी आदमी ने जवाब दिया, हमने दूर से रोशनी देखी थी, ऐसे लगता था जैसे उधर से आसमान जल रहा हो। रातों को बिजली चमकती देखी है और आवाज़ें आती हैं कि अपना मजहब ना छोड़ो। तुमने भी अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया है? हाँ, उसने कहा, हम इस्लाम को सच्चा मजहब समझते हैं, इसलिए उधर से भाग गए हैं। हम आपका मजहब नहीं छोड़ेंगे। दोनों बारी बारी सरोग को वो वाक़यात सुनाते रहे जो इमाम और सिपाही ने सरोग के पास आकर सुनाए थे। दोनों आदमी डरे हुए थे और इमाम उन्हें तसल्ली दे रहा था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो आदमी गुलामों के अंदाज से आगे आगे चले जा रहे थे। देवकोट जनूबी कश्मीर में एक गाँव हुआ करता था जो देवदार और चील की लकड़ी के बने हुए 20-25 घरों से मिलकर बना था। उसकी सारी आबादी हिंदू थी और वहाँ लकड़ी का मंदिर भी था। उससे थोड़ी दूर गजनी की फौज की एक चौकी थी जिसमें 30 के लगभग सिपाही रहते थे और उनका एक कमानदार अजमेर था जो मुल्तान के इलाके का रहने वाला था। किसी वक्त वो करमती हुआ करता था। सुल्तान महमूद ने मुल्तान को फतह करके करमतियों की असलियत बेनकाब कर दी तो करमतियों ने सुन्नी अकीदा कबूल कर लिया। उनमें अजमेर भी था। एक रोज़ वो 2 सिपाहियों के साथ रोज़मर्रा गश्त पर गाँव में गया। सुल्तान महमूद के हुक्म से वहाँ से मंदिर हटाकर मस्जिद बना दी गई थी और वहाँ एक इमाम भी मुकर्रर कर दिया गया था जो वहाँ के लोगों को इस्लाम के सबक देता और उन्हें इस्लामी इबादत सिखा रहा था। इस गाँव के लोग भी दहशत ज़दा थे। उन्होंने करीब की पहाड़ी पर बिजली चमकती और उसकी रोशनी गाँव में पड़ती देखी थी। इमाम ने एक रात बाहर जाकर ऐसी ही रोशनी में 3 लड़कियां बिल्कुल बरहन्ना देखी थीं। हवा बहुत तेज थी जिससे उनके बाल उड़ उड़ कर उनके चेहरों को ढांप रहे थे। वो चट्टान की ढलान पर चील के पेड़ों के दरमियान खड़ी थीं। रात तारीख थी। सामने वाले पहाड़ पर चमक हुई, उसकी रोशनी इस चट्टान पर पड़ी। इमाम इत्तफाक से बाहर खड़ा था। उसे इस रोशनी में, जो बहुत तेज नहीं मध्यम सी थी, ये लड़कियां नजर आईं। रोशनी बुझ गई। ज़रा देर बाद फिर रोशनी उस जगह पड़ी तो वहाँ कुछ भी ना था। इमाम ने हकाम के मुताबिक करीबी चौकी में जाकर कमानदार अजमेर को बताया कि रात उसने क्या देखा है। उसने अजमेर को यह भी बताया था कि गाँव के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि अगर इस्लाम खुदा का मजहब है तो इमाम उन्हें उसका मौजज़ा दिखाए। गाँव के लोग कहते थे कि उन्हें अपना मजहब तब्दील करने की सज़ा मिल रही है और बहुत बड़ी आफत आ रही है। अजमेर गाँव में गया। उसने लोगों का खौफ दूर करने की कोशिश की लेकिन वो खुद चकराया हुआ था। वो आलम फाजिल नहीं था। उसके पास कोई ठोस दलील नहीं थी जिसके ज़ोर पर वो डरे हुए लोगों को कैल करता। उसके पास एक ही दलील थी जो उसने इन अल्फाज में दी, अगर किसी ने इस्लाम के खिलाफ बात की तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो इमाम के साथ मस्जिद में चला गया और इमाम से कहा कि मैं फ़ौजी हूँ, आप इमाम हैं, आलिम हैं, क्या आपका इल्म ये नहीं बता सकता कि ये क्या हो रहा है? लोगों को कुछ बताएं, वरना मुसलमान सिपाही भी इस्लाम से दस्तबरदार हो जाएंगे। मैं हाथों से लड़ सकता हूँ और लड़ा हूँ। मैंने कलों की दीवारें फलांगी हैं, मगर मज़हब के मामले में उजड़ और बड़ा ही कमज़ोर इंसान हूँ। मुझे यहाँ इसलिए रखा गया है कि इस्लाम की पासबानी और आपकी हिफाजत करूँ। सुल्तान का हुक्म है कि लोगों के दिलों पर कब्ज़ा करो, मगर यहाँ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि लोगों के दिल शकूक और खौफ से भर गए हैं। मुझे कुछ बताएं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी गुमराह हो जाऊँ। इमाम के पास कोई दलील नहीं थी। अजमेर वहाँ के लोगों को डांट डिपेट कर वापस आ गया। वो परेशान और मुस्तरब था। उसे गाँव के लोगों की ये आवाज़ें जैसे तन्हाई में भी सुनाई दे रही थीं, अगर इस्लाम सच्चा मजहब है तो इसका मौजज़ा दिखाओ। उसकी चौकी एक पहाड़ी की ढलान पर थी। यह भी लकड़ी का 1-2 मंजिला मकान था। रात को अजमेर बलई मंजिल की खिड़की खोले बाहर देख रहा था। रात अंधेरी थी और सर्द भी। उसे बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कश्मीर के पेड़ पौधों की महक उसे मसूर कर रही थी। वो इस्लाम का शदाई था, मगर यहाँ आकर इस्लाम कड़े इम्तिहान में पड़ गया था। अजमेर को यकीन था और ये उसका ईमान था कि हिंदुओं का मजहब बातिल है
اور بت پرستی کفر ہے، مگر اس کے لیے یہ ثابت کرنا محال ہو گیا تھا کہ اس کا مذہب برحق ہے۔ اسے دور کسی پہاڑ کی چوٹی یا ڈھلان پر روشنی سی نظر آئی، اچھی خاصی چمک تھی۔ یہ روشنی ایک دو بار چمکی اور بجھی۔ ازمیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ کل کسی گاؤں سے یہ خبر اٹھے گی کہ رات ان کے گاؤں پر بجلی چمکی تھی، یا یہ کہ رات ایک پہاڑی نے شعلے اگلے تھے۔ کماندار ازمیر اتنا پریشان ہوا کہ قبلہ رو ہو گیا، اور اس کے ہاتھ اپنے آپ دعا کے لیے اٹھے۔ وہ گڑ گڑایا، خدائے ذوالجلال، اپنے نام کی لاج رکھ لو، اپنے مذہب کی لاج رکھ لو، مجھے اپنے نور کی چمک دکھاؤ کہ میں باطل کی ان روشنیوں کا راز پا کر انہیں بجھا سکوں۔ اگلی صبح اس کے دل پر یہی بوجھ تھا۔ وہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اپنے مذہب کی عظمت ثابت کرے، مگر اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا اور اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ سورج اوپر اٹھایا تو وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اکیلا ہی باہر نکل گیا۔ وہ لوگوں کے جھونپڑوں میں جا کر ان کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں اس علاقے کا جنگل گھنا تھا اور اس میں درندے بھی پائے جاتے تھے، ریچھ بھی کہیں کہیں نظر آتا تھا۔ ازمیر کے پاس برچی تھی اور کمان بھی۔ وہ چوکی سے کچھ دور جنگل میں چلا گیا۔ آگے ایک ندی تھی، اسے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے درختوں کی اوٹ میں جا کر دیکھا، 3 جوان لڑکیاں ندی میں نہا رہی تھیں۔ ازمیر لڑکیوں کے حسن پر حیران نہ ہوا، کیونکہ خدا نے اس خطے کو نسوانی حسن سے نوازا تھا۔ حیران وہ اس پر ہوا کہ قریب کوئی آبادی نہیں تھی اور یہاں کوئی عورت نہانے یا کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکیاں دیہاتی معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ اسے شک ہونے لگا کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں جن کے متعلق مشہور ہے کہ چڑیلیں یا بدروہیں ہیں، اور وہ کہیں کہیں آبادیوں سے دور نظر آتی ہیں۔ وہ انہیں مبہوت ہو کر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی نے ایک طرف دیکھتے ہوئے بڑی زور سے چیخ ماری اور دوڑ پڑی۔ ایک اور لڑکی اس کے پیچھے دوڑی۔ تیسری، جو ندی کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی، اٹھی اور جب دوڑنے لگی تو پانی میں گر پڑی۔ پانی گہرا نہیں تھا، گھٹنوں سے بھی نیچے تھا۔ ازمیر درختوں سے آگے ہو گیا۔ تب اس نے ایک بہت بڑا ریچھ دیکھا جو ندی میں اتر رہا تھا اور بڑے غصے سے غرا رہا تھا۔ لڑکی اٹھی، لیکن ریچھ کو اتنا قریب دیکھ کر اس پر اتنی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ پھر گر پڑی۔ ریچھ اسے پکڑنے کے لیے ندی میں اتر گیا۔ ازمیر فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکیاں انسان ہیں، چڑیلیں یا بدروہیں نہیں۔ اس نے لگام کو جھٹکا دے کر ایڑ لگائی۔ گھوڑا تیزی سے آگے بڑھا۔ ازمیر نے برچی کو دائیں ہاتھ میں تول کر پوری طاقت سے برچی پھینکی۔ برچی تیر کی طرح گئی۔ ریچھ پانی میں اچھلتا کودتا لڑکی تک پہنچ گیا، لیکن اڑتی ہوئی برچی اس کے پہلو میں اتر گئی۔ ریچھ بڑی زور سے غرایا اور پانی میں گرا۔ وہ پھر اٹھا اور ایک جگہ گھومنے لگا، آخر گر پڑا۔ ازمیر گھوڑے سے اترا اور دوڑ کر ندی سے لڑکی کو اٹھا لیا۔ ریچھ پانی میں آہستہ آہستہ تڑپ رہا تھا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں جانے کہاں بھاگ گئی تھیں۔ ازمیر نے لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا، کنارے پر پڑے ہوئے لڑکی کے کپڑے اٹھائے اور اس پر ڈال دیے اور واپس چوکی کی طرف چل پڑا۔ وہ لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ لڑکی سے یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور دوسری لڑکیاں کون ہیں اور کہاں رہتی ہیں۔ وہ چوکی میں پہنچا تو اسے لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ازمیر نے اسے گھوڑے سے اتار لیا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ پہلے وہ ریچھ سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی، اور اب ازمیر کو اور اجنبی جگہ کو دیکھ کر اتنی ڈری کہ اس کا سر ڈولنے لگا۔ ازمیر نے ہندوستانی زبان میں بات کی جو لڑکی نے سمجھ لی۔ ازمیر نے اسے کپڑے پہننے اور چلنے کو کہا۔ تم نے مجھے ریچھ سے بچایا ہے، لڑکی نے پوچھا۔ اگر میں نہ ہوتا یا میرے پاس برچی نہ ہوتی تو تم زندہ نہ ہوتی، ازمیر نے کہا۔ تمہارا جسم چیرا پھاڑا ہوا ندی میں بہہ رہا ہوتا، میں نے ریچھ کو مار ڈالا ہے۔ ڈرو مت، جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا۔ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جس سلوک کا تمہیں ڈر ہے وہ میں جنگل میں ہی کر سکتا تھا، ازمیر نے کہا۔ میں تمہیں بری نیت سے یہاں نہیں لایا، اب بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہاں کی رہنے والی نہیں، تمہاری زبان اس خطے کی نہیں، تمہاری ڈیل ڈول اور تمہارا چہرہ اس خطے کا نہیں، تم کسی غریب کسان یا گڈرے کی بیٹی بھی نہیں۔ اگر میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہ دوں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ پوچھے بغیر چھوڑوں گا نہیں، ازمیر نے کہا۔ ایک امانت کی طرح یہیں رکھوں گا۔ لڑکی ہنس پڑی اور اس نے ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں شروع کر دیں جیسے ازمیر کو بچپن سے جانتی ہو۔ میں مسلمان ہوں لڑکی، ازمیر نے کہا۔ میں اپنے مذہب اور اپنے سلطان سے غداری نہیں کروں گا، مجھے پتھر سمجھو۔ لڑکی نے کچھ اور دو آزمائے، آخر اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی پتھر ہے۔ تم نے میری جان بچائی ہے، لڑکی نے کہا، اور تم ویسے نہیں جیسا میں سمجھتی تھی،
तुम्हारा हक है कि मैं तुम्हें अपने राज से आगाह कर दूं, फिर तुम मेरे साथ जो भी सलूक करना चाहो करना। मैं उन चुड़ैलों में से एक हूँ जो लोगों को जवान और खूबसूरत लड़कियों के रूप में नजर आती हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ, सब लड़कियाँ इंसान हैं। हमारा मुस्तकिल ठिकाना कला कलंजर में है। आरजी ठिकाना वहाँ से थोड़ी ही दूर पहाड़ पर है जहाँ से तुम मुझे उठा लाए हो। आज रात हमें वहाँ से उस गांव पर बिजली चमकानी थी जो उस पहाड़ की दूसरी तरफ है। बिजली चमकाने का राज क्या है? तुम उन लोगों को पकड़ सकते हो, लड़की ने कहा, मगर अब मुश्किल हो गया है। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं उन्हें जिंदा या मुर्दा नहीं मिलूंगी तो वो अपना राज फाश होने के खौफ से यहाँ से चले जाएंगे। क्या तुम कोई तरीका सोच सकते हो? मैं तुम्हें वहीं ले जाकर छोड़ दूंगा जहाँ से लाया हूँ, अजमीर ने कहा, और खुद छुप जाऊंगा। हो सकता है वो तुम्हें ढूंढ रहे हों, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अगर तुमने धोखा दिया तो याद रखो कि मैं जहाँ भी छुपूंगा तुम मेरे तीर की जद में होगी। मैं धोखा नहीं दूंगी, लड़की ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगी। लड़की उसी जगह पहुंच गई जहां रीछ ने उस पर हमला किया था। रीछ नदी में मरा पड़ा था, पानी इतना ज्यादा नहीं था कि उसे बहा ले जाता। लड़की किनारे किनारे आगे चली गई और इधर उधर देखती रही। खासी देर बाद नदी के दूसरे किनारे पर दो आदमी नमूदार हुए। उन्होंने लड़की को बुलाया। लड़की ने उन्हें इशारा किया कि इधर आ जाओ। वो दोनों नदी से गुजरकर लड़की के पास आ गए और उससे पूछने लगे कि वो कहाँ रही है। ऊंची घास में से अजमीर और चार सिपाही उठे। अजमीर के हाथ में कमान थी। दोनों आदमियों ने उन्हें देखा तो वो घबरा कर इधर उधर देखने लगे, मगर अजमीर की ललकार ने उन्हें भागने ना दिया। करीब जाकर उन्हें घेर लिया। हमें अपने ठिकाने पर ले चलो, अजमीर ने कहा। दोनों ने टालने और कुछ ना समझने की अदाकारी की, लेकिन अजमीर ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो उसे अपने साथ ले चलें। दोनों ने लड़की को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उनका राज उसी ने फाश किया है। अजमीर ने तलवार निकाल ली और उन्हें आगे आगे चलने को कहा। वो चल पड़े और घने जंगल में दाखिल हो गए। जरा आगे जाकर वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। दरख्त बहुत ज्यादा थे, बेलें जमीन पर फैली हुई थीं और दरख्तों पर भी चढ़ी हुई थीं। यह जगह ऐसी थी कि उधर से किसी का भी गुजर नहीं हुआ था। खासा ऊपर गए तो पहाड़ी की अभी चोटी नहीं आई थी। वहां पहाड़ी दीवार की तरह सीधी हो गई थी। वहां खुश्क लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। उससे जरा परे एक गुफ सी बनी हुई थी। बाहर की आवाजें सुनकर गुफ में से दो लड़कियां निकलीं। अजमीर ने उन्हें नदी में नहाते देखा था। वो फौजियों को अपने आदमियों के साथ देखकर घबरा गईं। अजमीर ने गुफ में जाकर देखा, वहां 5-6 फुट ऊंचा लकड़ी का एक तख्ता रखा था जो कद आधा महीना मालूम होता था। यह आईने की तरह शफाफ और चमकदार था। यह सब क्या है? अजमीर ने पूछा। कुछ भी नहीं, एक आदमी ने कहा, हम तो ऐसे ही यहाँ आ गए हैं। अजमीर ने उस लड़की की तरफ देखा जिसे उसने रीछ से बचाया था। यह लड़की अजमीर की आसान मन थी। इसके एवज उसने अजमीर को यह राज बताने का वादा किया था। उसने अपने आदमियों से कहा कि अब पर्दा डालना बेकार है क्योंकि वो पर्दा उठा चुकी है। अजमीर को वो ऊपर ले गए। वहां से उसने नीचे देखा। दूर नीचे दरख्तों और सब्जाजार में अपनी चौकी नजर आ रही थी और उसे दूर वो गांव दरख्तों में से जरा जरा दिखाई दे रहा था जहां अजमेर गया था। उसे बताया गया कि पहाड़ी जहां से आमूदी हो जाती है वहां से लकड़ियों के ढेर को आग लगाई जाती है। ये आग नीचे के गांव वालों को नजर नहीं आ सकती। इसके सामने और ऊपर जहां वो खड़े थे यह आईना रखा जाएगा। आग पर तेल फेंकते रहेंगे जिससे शोला और ज्यादा भड़केगा और आपको लपकेगा। इसकी चमक आईने पर पड़ेगी। आईने को चौकी और फिर गांव की सिमत करके आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बार हिलाया जाएगा। इसकी चमक दूर नीचे इस तरह पड़ेगी जिस तरह बिजली चमकती है। अजमेर के लिए यह समझना कोई मुश्किल न था। उसे यह बताया गया कि इस रात उसकी चौकी और गांव पर चमक मारनी थी। इससे पहले किसी और जगह से गांव पर चमक मारी जा चुकी थी। ये अकल का खेल है, एक आदमी ने कहा। रात को पहाड़ी से आग का अक्स इस चमकदार तख्ते पर से लिया जाता है तो दूर नीचे से देखने वालों को यूं नजर आता है जैसे ये चमक आसमान की हो। इन पहाड़ियों की बुलंदी से जो लोग वाकिफ हैं रात को भी शक नहीं कर सकते कि ये पहाड़ से चमक आ रही है। अगले रोज हमारे आदमी गांव में जाकर अफवाहें फैलाते हैं और लोगों के जहनों पर यह गलत बात मुसलत करते हैं कि उन्होंने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए उन्हें देवताओं के इशारे मिल रहे हैं कि वो अपने मजहब में वापस आ जाएं, वरना उन पर कहर नाजल होगा। खूबसूरत बरहन्ना लड़कियों के रूप में नजर आने वाली चुड़ैलें यही लड़कियां होती हैं। ये इस खित्ते की रहने वाली नहीं, ये लाहौर और बठंडा के राजमहल की खास लड़कियां हैं। खुदा ने अजमेर की दुआ कबूल कर ली और अपने नूर की चमक दिखा दी थी। ये उसे अब लोगों को दिखानी थी। उसने इन आदमियों और लड़कियों को अपनी चौकी में ले जाकर पहरे में बिठा दिया और उनसे पूछने लगा कि उनके और साथी कहाँ कहाँ हैं।
नाजरीन, सरोग का काफिला अभी तक 2 गाइडों की रहनुमाई में चला जा रहा था। इमाम ने कई बार गाइडों से कहा कि अब तक उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। गाइडों ने उन्हें बताया कि उन्होंने रास्ता लंबा इख्तियार किया है, लेकिन यह महफूज और आसान रास्ता है। यह रास्ता आसान नहीं था। उनके गाइडों ने मंजिल से बहुत दूर वीराने में ले गए थे। एक शाम काफिले ने एक जगह क़याम किया और गाइडों ने उन्हें बताया कि कल दिन के पहले पैर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सब थके हुए थे, खा पी कर फौरन सो गए। सुबह उनकी आंख खुली तो दोनों गाइड गायब थे। वो अपने घोड़ों पर चले गए थे। उन्हें इधर उधर देखा, लेकिन बेकार था। वो कहाँ नजर आ सकते थे। उनके इर्द गिर्द ऊंचे पहाड़ खड़े थे। नीचे से ऊपर तक चील के दरख्तों ने पहाड़ों को ढांप रखा था। उन्हें वही रास्ता मालूम था जिस रास्ते से वो आए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो कहाँ है और मंजिल कितनी दूर है। हिंदू डंक मार गया है, शाहरुख ने इमाम से कहा। उन दोनों आदमियों को मालूम था कि अब मुझे यहाँ के पुरअसरार वाक़यात बताते जा रहे हैं। हम जब बालनाथ से आ रहे थे तो मैंने 3-4 बार कुछ दूर दूर आदमी जाते देखे थे। एक मुहाफिज ने कहा। मैं उन्हें मुसाफिर समझता रहा, ये वही न हूँ। मैंने उन्हें इससे पहले भी देखा था, जब हमने पहला सांप देखा था। एक और मुहाफिज ने कहा। उनके चेहरे नज़र नहीं आए थे, वही थे या कोई और थे, अब क्या फ़र्क पड़ता है। शाहरुख ने कहा। हम बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। और देखो, थैलों में खाने की कोई चीज़ भी बाकी है, वो फेंक दो। हो सकता है वो उनमें जहर मिला गए हों। उनकी बड़ी ही कठिन और ख़तरनाक मुसाफा शुरू हो गई। दिन भटकते गुजर गया। रात आ गई जो उन्होंने सोकर गुजारी, लेकिन यहाँ सर्दी ज़्यादा थी। अगला दिन भी सब्ज पोश वादियों में भटकते गुजर गया। अगली रात जब वो सर्दी से बचने के लिए कोई जगह देख रहे थे, उनके गाइड जो उन्हें इतने हसीन वीराने और इतनी पुरपीज भूल भलियों में छोड़ गए थे, कला लोहकोट में हिंदू कलादार के पास बैठे अपनी कारगुजारी सुना रहे थे। तुमने उन्हें हलाक क्यों न कर दिया? कलादार ने कहा। सुल्तान महमूद का कलादार मामूली आदमी नहीं होता। मैं खुश हूँ कि तुमने बहुत मोटा शिकार पकड़ा है, लेकिन उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। कलंजर से हमें हुक्म मिला था कि किसी मुसलमान फौजी को कत्ल ना किया जाए। एक गाइड ने कहा। हम खुद नहीं समझ सके कि ऐसा हुक्म क्यों मिला था। हम उनके खाने में बड़ी आसानी से जहर मिला सकते थे। महाराजा कलंजर ने कुछ सोचकर ही कहा होगा कि उन्हें कत्ल ना किया जाए, कलादार ने कहा। और शाहरुख को अपने काफिले के साथ भटकने से कोई भी ना रोक सका। उन्हें कहीं कोई आबादी नजर नहीं आती थी, ना कोई अकेला धकेला झोंपड़ा या कोई इंसान नजर आता। कभी कभी उन्हें शेरों का जोड़ा नजर आ जाता था या भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। दुनिया का इतना हसीन और जान फिजा खिता उन्हें बड़ा ही हौलनाक और पुरअसरार दिखाई देता था। हिंदू ने बड़ी कामयाब चाल चली थी। सुल्तान महमूद फौज की जो नफरी यहाँ छोड़ गया था, उसका सबसे बड़ा अफसर शाहरुख था। शाहरुख को गायब कर देने से हिंदू ये फ़ायदा उठाना चाहते थे कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जो शोबदाबाजी की तरह मुहिम चला रखी थी, उसे बेखौफ खतर और तेज़ कर दें। हिंदू याराना चालों में हमेशा तेज़ और दानिशमंद रहा है। नाजरीन, कलंजर में राजा नंदाराय कलंजर के कले में अपने तकरीबकारों के उस्ताद हिदायतकार से यह रिपोर्ट सुन रहा था कि उसने लोगों को बिजली की चमक और हसीन लड़कियों को चुड़ैलें और बदरूहें बनाकर दिखाने और अफवाहबाजी की जो मुहिम शुरू की थी, वो बेनकाब हो गई है। और गजनी के फौजियों ने हमारे 2 आदमी और 3 लड़कियों को सामान समेत पकड़ लिया है। उसने ये भी बताया कि मुसलमान फौजी उन आदमियों और लड़कियों को हर गांव में ले जाते और लोगों को दिखाते हैं कि यह है बिजली की चमक और चुड़ैलों की हकीकत। अजमेर ने जिन आदमियों और लड़कियों को गिरफ्तार किया था, उनसे इस वादे पर उनके साथियों के मुतालिक पूछ लिया था कि वो उनकी जान बख्शी करके उन्हें रिहा भी कर देगा। उसने जिस तरह उन्हें पकड़ा था, उसी तरह उसने उनकी निशानदाही पर उनके साथियों को पकड़ लिया। उनके पास भी यही सामान था, लेकिन उनके साथ कोई लड़की नहीं थी। वो ज़्यादा आदमी थे। वो गांव गांव जाकर अफवाहें फैलाते और लोगों को डराते थे। एक रोज़ अजमेर ने यह इंतज़ाम किया कि 2-3 गांव के लोगों को एक जगह जमा कर लिया और उनके सामने इन अफवाहबाजों को खड़ा करके उन्हें कहा कि वो लोगों को बताएं कि वो जो कुछ कहते रहे हैं वो सब झूठ और धोखा था। बहुत से लोगों ने उन आदमियों को पहचान लिया। उन आदमियों ने लोगों को अपनी असलियत बता दी। फिर शाम के बाद अजमेर ने लोगों को बिजली की चमक भी दिखाई और तीनों लड़कियों को एक पहाड़ी की ढलान पर खड़ा करके दूर ऊपर से उन पर आईनानुमा तख्ते से रोशनी डलवाई। फिर लड़कियों को उसी हालत में नीचे बुलाकर लोगों के सामने खड़ा कर दिया। महाराजा नंदाराय को जब पता चला कि उनकी मुहिम नाकाम और बेनकाब हो गई है, तो उसने ये हुक्म दे दिया कि इस इलाके में जो मुसलमान इमाम और उस्ताद लोगों को इस्लामी तरीके और इबादत सिखा रहे हैं, उन्हें इस तरह गायब करके कत्ल कर दिया जाए कि उनका किसी को सुराग ना मिले। गजनी की फौजी चौकियों में जो फौजी हैं, उन्हें भी अकेले धकेले गायब करना शुरू कर दिया जाए।
नाजरीन, अजमेर एक रात अपनी चौकी में अपने कमरे में अकेला था। एक कमरे में उसने उन हिंदू मर्दों और लड़कियों को कैद कर रखा था जो लोगों को फरेब देते और नजरियाती तकरीब करते फिर रहे थे। उन पर उसने पहरा खड़ा कर रखा था। उसने उन्हें कह दिया था कि कल वो मर्दों को बालनाथ भेज देगा जहां उनकी किस्मत का फैसला शाहरुख करेगा, और लड़कियों को सिपाहियों की हिफाजत में कलंजर भेज दिया जाएगा। एक सिपाही ने उसे आकर बताया कि एक लड़की उससे मिलना चाहती है। उसने लड़की को बुलाया। ये वही लड़की थी जिसे उसने रीछ से बचाया था। क्या तुम आज रात भी मुझे अपने पास नहीं बुलाओगे? लड़की ने उससे पूछा। अगर तुम मुसलमान होती, अगर तुम पर यह फ़र्ज होता जो मुझे सौंपा गया है, और अगर तुम ईमान का मतलब समझ सकती तो तुम्हें हैरत ना होती। तुम्हारी नज़र जिस्म पर है, यह तुम्हारा मज़हब है। मेरी नज़र रूह पर है, यह मेरा मज़हब है। अगर मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँ तो नागन का जहर निकाल भी दो तो भी वो नागन ही रहेगी। अजमेर ने कहा, उसे शहद खिलाते रहो तो भी उसमें जहर बनेगा और नागन डस लेगी। ये उसकी फितरत है। मैं यहाँ इश्कबाजी और शादी करने नहीं आया। मुझे तुम्हारे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। यही मेरी ताकत है कि मेरी निगाह ना अपने जिस्म पर पड़ती है, ना तुम जैसी किसी हसीना के जिस्म पर। और लड़की, मेरे मज़हब का हुक्म है कि दुश्मन की औरत तुम्हारी कैद में हो तो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना गुनाह है। उसे अलग रखो। लड़की के आंसू निकले और वो अजमेर की चारपाई पर उसके साथ लग कर बैठ गई। तुमने मुझे रीछ से बचाया है, लड़की ने कहा। अब तुम मुझे रिहा करके हिफाजत से वापस भेज रहे हो, और हम 3 लड़कियां इतने दिनों से तुम्हारे पास तुम्हारे रहमो करम पर हैं, मगर तुम हमारे लिए पत्थर बने रहे। लड़की बोलते बोलते चुप हो गई। उसने अजमेर का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर दर्द के आसार बड़े साफ थे। तुम मुझे तकलीफ में मालूम होते हो। अजमेर, क्या तुम जख्मी हो? अजमेर ने बायां हाथ ऊपर किया। उस हाथ में खंजर था। खंजर की नोक खून आलूद थी। लड़की उसके दाएं तरफ बैठी थी। वो देख नहीं सकी थी कि जब वो उसके साथ लगकर बैठ गई थी तो अजमेर ने अपने सिरहाने के नीचे से खंजर निकाल कर उसकी नोक अपने नंगे पांव के ऊपर वाले हिस्से में उतार दी थी और नोक को दबाता रहा था। लड़की ने खून आलूद खंजर देखा तो उठकर अजमेर के सामने आ गई। उसे अजमेर का जख्मी पांव नजर आ गया जिससे खून निकल रहा था। लड़की ने उसे हैरान होकर देखा। हैरान ना हो लड़की, अजमेर ने कहा। मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूँ और जवान आदमी हूँ। तुम्हारे जिस्म के लिम्स ने मेरे जहन से मेरा फ़र्ज उतारना शुरू कर दिया था। मैं सुल्तान के आगे जवाबदा नहीं, बल्कि खुदा के आगे जवाबदा हूँ। यहाँ मसला महाराजों और सुल्तानों की फतह और शिकस्त का नहीं, यहाँ मेरे और तुम्हारे मजहब की टक्कर है। मैं अपने मजहबी असूलों को तुम्हारे हुस्न पर कुर्बान नहीं कर सकता, और मैं अपने ऊपर जबर भी नहीं कर सकता। अपनी तवज्जो तुमसे हटाने के लिए खंजर की नोक अपने पाँव में उतार ली थी। जाओ, तुम चली जाओ। लड़की ने उसका एक हाथ थामा और अपनी आंखों से लगाया, फिर उसका हाथ चूम लिया। वो कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। लड़की अचानक घूमी और कमरे से निकल गई। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।